आदरणीय प्राचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय खगौल डॉक्टर JK झा सर, हमारे शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार जो रीडिंग मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी के तहत यहाँ पर प्रावधान था कि टॉक विद द ऑथर एक कार्यक्रम है। यानी कि आप जिस शहर में हैं, जिस शहर में केंद्रीय विद्यालय अवस्थित है, वहाँ अगर कोई ऑथर रहते हैं, कोई लेखक हैं, कवि हैं, तो उन्हें बुलाइए और उनसे बच्चों की बातचीत कराइए। यह कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रारंभ किया है ताकि उस लेखन की परंपरा से, लेखन के स्वभाव से और लेखक के जीवन से हम परिचित हो सकें। क्योंकि अब तक जो व्याख्या हम करते रहे हैं या करते हैं, वो आलोचकों या शिक्षकों द्वारा किया जाता है। लेखक ने क्या समझा था, क्यों लिखा था, उसकी अनुभूति कैसी थी, हूबहू आलोचक वहां तक पहुंच नहीं पाता है, शिक्षक पहुंच नहीं पाता है। तो कहीं न कहीं सृजनात्मकता के विकास के लिए इस पक्ष को जानना हमारे लिए, छात्रों के लिए, पाठक के लिए आवश्यक है। और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम अगर होते हैं, आयोजित होते हैं, तो इस दिशा में एक बड़ा प्रयास किया है उस सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले अपने प्राचार्य महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि सर को सम्मानित किया जाए। यह कार्यक्रम पुस्तकालय के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। एक अंगवस्त्र भी, तो मैं मैडम से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस अंगवस्त्र को प्रदान कर मैडम उन्हें सम्मानित करें। अब मैं अपने प्राचार्य महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि सर मंच पर आया जाए और स्वागत भाषण देकर अपने जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें सम्मानित किया जाए। सर श्री आलोक धनवा जी, respected faculty members of this Vidyalaya and dear class 12 students. At the outset, I welcome you all in the library of Kendriya Vidyalaya Khagol in this beautiful program Meet the Author, sponsored by Kendriya Vidyalaya Sangathan. At first, on the behalf of you all students and from Kendriya Vidyalaya Khagol family, I extend my sincere welcome to Sri Alok Dhanwa ji. We have not seen the God, we cannot see the God, but the eminent person among us, the man who is the motivator of thousands of the people, thousands of the young people. If we find such type of man among us, he or she is not less than a God. Sri Alok Dhanwa ji is a living God among us because he has inspired a lot many young poets and writers. Not only that, he is a source of inspiration for the young students like you. Gone are the days when the parents were sending the children for being engineers and doctors. Now after seeing this type of men, Meet with the Author program is having many motives. The first motive, which has been beautifully explained by Sri C.V. Singh sir, that when your teacher is explaining any poem or prose in the classroom, sometimes the teacher may not be competent enough to go into the social background, economical background, the other backgrounds in which the poet has collected the ideas which he has put into his creation, his poem and prose. When you face the author personally, when you interact with the author personally, you can ask to him or her. Today Sri Alok Dhanwa ji is sitting in front of you. Today you can ask him directly what were his concepts, what were his imagination when he wrote the beautiful poem Patang, which is prescribed in your book you all are studying. Today you can ask this question. Another motive behind this type of program is it's sort of career counseling also.
today you can see that Sri Alok Dhanwaji is one of the prominent living writers in India. Sometime all of a sudden you will find that he has been selected for Booker Prize or some other renowned Sahitya Akademi and all of a sudden we'll find that, and we'll start collecting this type of the photographs which we are collecting today. That once we were having the beautiful meeting with this author who is so renowned, and we should be proud enough that of Hindi literature cannot meet with Premchand and so those people, great people who are not among us. So you are fortunate enough that you are having the living writer, living author among you, and that too from your background, from Bihar, from Patna, each place where you are growing. So if from this soil, if from this land he can be such a great person who is having his creation prescribed in your syllabus, why not you people? So it's sort of career counseling for you. You must get inspiration from him. You must utilize this time to understand the poem Patang in a better way. Not only Patang, the other the creations which are prescribed in your syllabus, that in what frame of mind writers, the poets, the authors are creating the poem and prose. Today I will not take much of your time because it is not my time to explain the things. It is the great man Sri Alok Dhanwa is among we all. So today he has to speak and you have to ask. Once again, without taking much of your time and his time, once again I extend my sincere welcome and thanks to Sri Alok Dhanwa ji to find some time to come among us to motivate us and our students. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटे, सर की पुस्तक ऐसे जो प्रकाशित पुस्तक है वो एक ही है, दुनिया रोज बनती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो कि 30 पुस्तकें, 40 पुस्तकें, 150, 200 तक भी लिख पाते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पुस्तक तमाम पुस्तकों पर भारी पड़ती है और उसमें भी लगभग 10 ऐसी कविताएं हैं जो कि काफी लंबी कविताएं हैं लेकिन लोगों को याद है। तो ख्याति के बारे में अगर आप गूगल से तमाम चीजों से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस लेखक से, उस कवि से मिल रहे हैं जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है और ये विगत 10 वर्षों से है। पतंग कविता पर बातचीत करने के लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा। जिस बच्चे को सर से कुछ अगर पूछना है तो आप यहाँ से जाएंगे, हम माइक से आप पूछेंगे, वो बैठे बैठे वहां शूट कर देंगे, वहाँ माइक है। तो सबसे पहले कोई हाथ उठाए। हाँ, सारे गई सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। उसी क्रम में आगे सबसे तेज साइकिल चलाते हुए, पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु आ रहा है और फिर वहां पर नीचे में पंक्ति आती है कि वे अपने साथ जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। तो सर इस पर थोड़ा सा आचार्य महोदय, हमारे सभी बच्चे तो जिस तरह कोई गाना गाता है, सब बच्चे गाना नहीं गाते। हमारी जो महान भारत को उपलब्धि मंगेशकर जी, तो कोई किसी को पता नहीं था कि बता ये आएंगी और इतनी बड़ी गायिका भारत में होंगी जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती थी। जब लंदन जाती थी तो लंदन का जो सबसे बड़ा हॉल है उसमें 3 साल पहले टिकट बुक हो जाती, ऐसी महिला थी बताई। और म्यूजिक जो है सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट होता है,
यानी जिस भाषा को आप नहीं जानती हैं उसका भी जब म्यूजिक बजेगा, उसका जो नोटेशन है, तो आप उसको समझ जाएंगे, उसके अनुसार आप नाचना शुरू कर देंगे या कोई बाजा बजाना शुरू कर देंगे। म्यूजिक के बाद मतलब स्क्रिप्ट आता है, स्क्रिप्ट है या जो वर्णमाला है, इसमें ऐसा है कि सब लड़के पतंग में रुचि नहीं है, और कुछ लड़कों का पतंग में इतना मन लगता है अगर उनको हाफ एन आवर भी मिलेगा तो वो लटाई लेके चले जा सकते हैं। जहाँ मैदान है वहाँ मैदान में जाएंगे, और आप जानते हैं तो जितना खींचिएगा पतंग ऊपर उठेगी, फिर ढीला छोड़ दीजिए आप पतंग डूब जाएगी, फिर पीछे बहुत लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जो उसको काटना चाहेंगे, आगे में बहुत चीज लगाते हैं, तो हम लोग बचपन से ही देखते हैं उसको। तो कपास का मतलब हुआ ये जिससे बनता है धागा। तो ये एक कहने का खूबसूरत तरीका है, ये कहने का खूबसूरत तरीका है ये कि हम जन्म से उस प्रतिभा को लेकर आते हैं, हम पतंग उड़ाए बिना नहीं रह सकते, तो प्रतिभा हमारे भीतर जन्म से ही है। कपास भी हमारे भीतर जन्म से ही है, कपास भी तो कोई उपजाता है, खेत में होता है कपास। आप लोगों को पौधा भी नहीं देखा, हमने देखा है, खास करके साउथ में देखा है हमने, वहाँ कपास, महाराष्ट्र में कपास काफी पैदा होता है। तो ये कहने का एक तरीका है। फुटबॉल सब कोई नहीं खेलता, कुछ लोग खेलते हैं, और उन्हीं कुछ लोगों से रोनाल्डो है, आप तो जानती होंगी नाम रोनाल्डो के बारे में। दो रोनाल्डो हुए, एक चिली में हुए रोनाल्डो, दूसरे पुर्तगाल में हुए रोनाल्डो। तो कहने का मतलब यही है, तेंदुलकर जिस तरह हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ गावस्कर आए जिस तरह से, और बड़े बड़े कपिल जैसे लोग आए, कोई जानता नहीं था ये उस तरह से। अब ये जो है ये तो गुजरात की चीज़ थी, गुजरात में इसको पर्व त्यौहार में खिचड़ी का पर्व होता है, पूरा संक्रांति, उस समय लोग उड़ाते थे, लेकिन ये तो बचपन से ही है। गाँव में जो भी पैदा हुआ है या शहर में थोड़ा कम हो गया, तो इमारतें बहुत बन गई और मैदान नहीं है उसमें बड़े बड़े, तो जहाँ भी संभव है वो पास उनके पास है। पास आने का मतलब ये है कि आप उस धागे के पास पहुँचते हैं। आपने देखा लटाई देखी होगी, लटाई होती है जो उसमें धागा होगा, उसमें आप पतंग को बांधते हैं, और दूर जाके एक लड़का जो है पतंग को ऊपर छोड़ देता है, और उसमें अच्छे से खींचे हुए पतंग ऊपर उठती है। हर मौसम में पतंग नहीं उड़ा सकता, जब ऐसी हवा होगी जो मदद करेगी पतंग को उड़ाने में। मान लीजिए ज़्यादा हवा चल रही है, या वर्षा ऋतु है, उसे पतंग नहीं, शरद हो चाहे वसंत हो, दो ऋतुएं ऐसी हैं जो कि किसी भी खेल के लिए बहुत फ्रूटफुल है, उसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी अर्थ में हमने पतंग पास आपने पूछा था पास के बारे में। पास जन्म से आता है, मतलब जन्म से ही पतंग की भावना होती है, तो उड़ाने की भावना जन्म से ही होती है, और जन्म से ही कपास उनके पास आ जाता है। जो उड़ाने वाली है या उड़ाने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे सिंधु को मिला है, सिंधु अभी में आई, चाइना को हराया है सिंधु ने परसों, और गोल्ड मेडल दिया उन्होंने। तो कठिन है चाइना को बैडमिंटन में हराना, उन्होंने दिया। वो चीज़ बचपन से थी उनके अंदर, और उसको नरिश किया, उसको उसका पोषण हुआ, और जो अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, उनके खिलाड़ी है, वो नई पीढ़ी को, एक पुरानी पीढ़ी है, वो मतलब उसको सिखाते 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 उन पर आरोप भी लगाया गया सिंधु पर, ये गलत व्यक्ति है, उसको झूठ साबित किया उन्होंने, और दिखा दिया कि हाँ हम अच्छे लोग।
ये है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि पतंग सिर्फ यहाँ पतंग नहीं है, बल्कि हर बच्चे का वह उसका खेल है जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसे। और किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिभा संपन्न बच्चा होता ही है, हो सकता है वो पतंग में हो, फुटबॉल में या किसी और में है। मतलब यह कि जन्मजात बच्चों में प्रतिभा होती ही है। सिर्फ उसका बच्चे की कोमलता से, मौसम की कोमलता से या सिर्फ उस कताई के धागे तक ही उसका संबंध सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थ में देखा जाए तो उस प्रतिभा से है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रतिभा वाला जो यहाँ एस्पेक्ट पक्ष है उससे मैं भी परिचित नहीं था सर से एक दो बार, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन मैं जब अकेले में बैठकर हम लोग बातचीत करते हैं वहाँ पर लगभग नहीं बता पाते हैं, बताते ही नहीं है। दूसरी बातें होती है, लेकिन ये सौभाग्य है कि आप लोगों के माध्यम से ये बातें निकल कर आ रही हैं। अब मैं किसी कोमल नाम लगता है, कोमल कुमारी, क्लास 12 साइंस। अब मैं चाहूंगा किसी दूसरे बच्चे से, कोई दूसरा बच्चा। क्या नाम है बेटा? आप भी 12 साइंस की है ना? श्रीमान आलोक धर्माकर, आपकी कविता पतंग में एक पंक्ति ये आती है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, इससे आपका क्या अभिप्राय है? सर, इनका कहना है कि एक पंक्ति आती है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग वो ढोलक का ही एक लगभग स्वरूप है। तो ये बच्ची चाहती है कि उससे थोड़ा सा उसका अभिप्राय स्पष्ट किया जाए कि मृदंग की तरह बजाने का अभिप्राय क्या है सर? गौड़ी मठ है जगदलपुर में, गौड़ी मठ, उसमें शाम में जब भजन कीर्तन होता है तो उसमें हमारी आवाज आती है। तो वो इस तरह से ऐसे नाचते हुए आप पूरा घूमते हैं, भजन को बजाते हैं। तो बच्चे जब छत पर जाते हैं या मैदान में जाते हैं तो कोई एक जगह नहीं है जहाँ से आप भजन को इसको पतंग को उड़ा नहीं सकते। पतंग सकती है आसमान में तो जगह ही जगह है। जब आप उड़ाएंगी तो आप उस तरफ से जाएंगी। उसका जो म्यूजिक है, जो उसका ग्लो है वो, और उसके अंदर जो संस्कार है, संस्कार को क्या चीज जो होता है ना, संस्कार जैसे विश्वास एक भूमि बांध दिया गया, जो नाश्तेवादी है उससे कहा जाता है आप एक भूमि में जाइए, सिर्फ एक भूमि। आप देखिए अगर वो बहुत आगे जाएंगी, कोई रखती है पतंग नाश्ता सीखती है तो एक भूमि में जाए, फिर दो भूमि। कला अनंत है, कला का कोई अंत नहीं है। आपके साथ ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई विकल्प नहीं हम लोग के पास। हम ये नहीं कहते हैं कि पुल बनाना, विश्वसनीय थे तो बड़े इंजीनियर थे भारत में, स्वाधीन भारत में जो भी नया नक्शा बना कि उसके कैसे बनेगा, भाखड़ा नंगल का बांध कैसे बनेगा, ये सब विश्वस्तरीय बनाते थे उसका नक्शा। और BRC जो भला है सब सब नक्शा हो गया, कहाँ पर क्या काम से नेहरू जी के पास जाके दिखाते हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो भी बहुत ज़्यादा शिक्षित थे, अंग्रेज में उनकी शिक्षा हुई। तो ये एक मकान बहुत सुंदर आप उसका नक्शा बनाएंगी, एक होटल का बहुत सुंदर नक्शा बनाएगी, तो उसमें भी उतना ही प्लेजर है, उतना ही पतंग उड़ाएंगे। इसलिए पतंग तक ही उसको सीमित नहीं करेंगे। आप किसी भी चीज में जो कला एक जगह जाके जन्म लेती है उसमें कला आ जाएगी। क्रिकेट में जब बॉल जीतते थे बड़े बड़े बॉलर तो दिखाई नहीं देता था, गावस्कर जब उसको खूब करते थे
सेंटर मार्शल ये करते थे। तो वो कानपुर में गए, गावस्कर उनकी शादी थी वहाँ, तो 0 पे आउट हो गए। तो इतना बड़ा बॉलर था, मैकम मार्शल चले गए, दुनिया से चले गए। वो वेस्ट इंडीज के थे। तो उनकी वहाँ जो लड़कियाँ थी, औरतें थी, उन्होंने चूड़ियाँ गिरा दी, ये चूड़ी पहन लो, क्रिकेट खेलना छोड़ दो। तो मैकम मार्शल को टेस्ट नहीं कर रहे थे। उसमें 80, 85, 100, 120 तक जाती थी बॉल की रफ्तार। बड़े बड़े लोग आए, दिल्ली आए, थॉमसन आए, जेफ थॉमसन, रमेश सिंह, ऐसे क्रिकेट से मैं जुड़ा था। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जब वो गए वहाँ तो उनको एक किताब भी, उस दिन अपनी कोई किताब भी ये करनी थी, प्रकाशित करनी थी। वो प्रकाशित हो गई और उस पर दस्तखत किया उन्होंने और मैदान में गए। और लंच होने के पहले उन्होंने अपनी लंच आते आते उन्होंने सेंचुरी बना दी क्रॉस कर। तो ये बड़ा अद्भुत चीज है। मतलब कैसे कौन जाएगा, मतलब हमारे यहाँ बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, मैं पट्टाखाल का विद्यार्थी था, हमारे यहाँ ऐसे विद्यार्थी थे हमारे साथ रहते थे। वो तो कहते थे कि हम तो 2 ही घंटा रात में तैयारी करते हैं। तो बड़ा अजीब लगता है वो हाउस में कैसे तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक दिन सोचा कि मैं जग के देखूंगा कि जो कैसे ही टॉप करता है। उनका दिमाग इतना तेज था तो कहा ज़्यादा क्यों पढ़ेंगे, जो हमारे काम की चीज़ है वो पढ़ेंगे। अब वो काम की चीज़ करता था और कुछ मतलब बुक्स रखता था, ऐसा बुक्स जो कि उसको मदद करे और वो काम कर देता था। फिर वो सुना दिन में हमको न्यूज़ पढ़ाना शुरू किया और अच्छा एक पढ़ रहे थे, दिमाग में हम छोड़ दिए दूसरे काम। ये अपन में वही चीज़ है जो एक नाच है, नृत्य है, जो भी कलाएँ हैं दुनिया में, इन कलाओं में एक हारमोनी बहुत गाने कटी पतंग फिल्म थी ना, असाधारण थी और गाने सुना थी उसमें। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है पतंग तो हमारे बचपन से ही साफ है, जन्म होते ही हम लोग सीखते हैं। सबसे आसान है, सबसे ज़्यादा नेटिव है, नेटिव मतलब देशज है। गाँव में रहिए, शहर में रहिए, वहाँ नगर में रहिए, आप स्टेज भूले भी जहाँ से पतंग उड़ाते हैं। इसलिए मेरे यहाँ छतों में जाए, छतों में आप ठीक है बेटे, ये काम नहीं कर रहे हैं, कर रहा है। लगता है कि सर की बात आप तक पहुंच गई होगी। तो संगीत है एक तरह का वो संगीत है, उसमें वो कविता में भी वो पंक्ति आगे भी आती है कि वो मेरे रंध्रों में एक लय की बात उसमें होती है कि वह लय उसे छत से गिरने से बचाता है। जो एक दो कुछ और नहीं दिखाई देगा। कोई भी काम जब आप करेंगे बहुत अच्छा, मैच बना रही हैं आप, चाहे आप क्रिकेट खेल रही हैं या आप नृत्य कर रही हैं या पतंग उड़ा रही हैं, तो तय मानिए वो जो देने की कोशिश हमने की, वो आप अपने कंसंट्रेशन को ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कोई और चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सामने से बारात गुजर जाएगी लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, समझ नहीं देगा। तो पूछेगा आकर के चेकों की कहानी की रशियन मैंने इतनी बड़ी बारात गुजरी, आपको दिखाई नहीं देगी, कुछ नहीं दिखाई देगा। आप क्या पढ़ रहे हैं? हम तो पढ़ रहे थे मतलब न्यूटन के बारे में। तो ये न्यूटन पर इतना ज़्यादा न्यूटन में आप मतलब खो जाएंगे, उनके सिद्धांतों को समझने। उसी तरह पतंग है, ये सारी चीज़ें जैसा आचार्य महोदय का, ये सब इंटरलिंक्ड है, ये सब इंटरलिंक्ड है। आपका चलने में अगर राग नहीं हो तो आप गलत तरीके से चलेंगे तो आप भी जाएंगे। आपको बचपन से सिखाया हम लोगों ने, हमको माँ सिखाती थी, फिर हम किसी को और सिखाए। अब हम ये इस एज में आए हैं, अब भी किसी को सिखाएंगे। अगर उसको देखते हैं कि वो
अलग तरीके से चल रहा था, मेरे इस तरीके से चल के देखो, इस तरह से सीढ़ी पर चढ़ो, इस तरह से तुम आगे बढ़ो। तो ये है मुझे इतने महंगे बात बनते हैं, कैसे बनते हैं। मैं बताता था दिल्ली में, तो हम बच्चों से पूछे, लड़कियों से पूछे तो अच्छा तुम लोग लड़कों लड़के से दोस्ती करती हो, अगर तुमको हम दे दें तो कौन जुटा आता था सबसे महंगा, आप समझ का नाम लीजिए। जुटा आता था बहुत महंगा, 90,000 का जूता था। और जूते को शिकागो के एक उसमें रखा गया, रात में उसका शीशा तोड़ के और वो जूता चुरा दिया। इससे उसकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई जूते की, मार्केटिंग। जब आप जाते हैं दुकान में तो आपको बताया जाता है कि इसको पहनिए, इसको पहनिए, इसको मान के देखिए, उसमें ये सबसे कम्फर्ट लगता है, आपको बढ़िया लगता है, जिसको चल के आप देखते हैं अच्छा लगता है। इट इज हारमोनी, इट इज हारमोनी ऑफ पतंग। ऐसे ही हारमोनी है पतंग की। आप दौड़ती हैं, आप उसको पतंग को उड़ते हुए देखती हैं, आप भी उड़ती हैं, आप भी उड़ती हैं उसको देख कर। आपको ये लगता है कि आपका शरीर नीचे है, लेकिन नहीं, उसके साथ साथ आपका मन जो है वो उड़ता है। जहाज का भी कंसेप्ट आया, अगर नहीं होता तो जहाज का कंसेप्ट नहीं आया। वो तो लंबी बात होगी कि जहाज का और फिर लियोनार्डो दा विंची नाम था, जिन्होंने जहाज का कंसेप्ट किया। आप पहले साइंस की टीचर हुए तो जरूर बताएंगे आपको जो जहाज है, जहाज किसको बनाया, अभी किस तरह से उसको उड़ाया गया, रेल कैसे आई, तो ये चीज़ें। अगला प्रश्न लेते हैं सर। हाँ, आगे तो सर जो बताना चाह रहे हैं कि अगर आप रुचि के मुताबिक कार्य को करेंगे, मतलब जिसको करने में आपको मजा आता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक महासंगीत पैदा होगा, अन्यथा फिर आपके लिए वह बोझ बन जाएगा। यहाँ तक भी पढ़ाई की बात थी, अगर ठीक है, हो सकता है किसी को इतिहास में बहुत अधिक रुचि है, किसी को हिंदी में रुचि है, किसी को अंग्रेजी में रुचि है, किसी को विज्ञान में रुचि है। अब जिसको विज्ञान में रुचि है उसको इतिहास पढ़ने के लिए दे दो, और जिसको इतिहास में रुचि है उसे विज्ञान पढ़ने के लिए दे दो, तो फिर मुझे लगता है कि बदवजह हो जाएगा वहाँ पर दोनों का ही। अमिताभ बच्चन जैसे आर्टिस्ट बहुत बड़े वो हैं, उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं पैसा के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अमिताभ बच्चन, और ब्लैक जैसी फिल्म में भी काम किया, तो थोड़ा तकलीफ ब्लैक कानूनी तहजीब के साथ काम करना। तो अमिताभ बच्चन आते हैं उस समय, सलमान भी आता है उस समय, आमिर भी आते हैं, दुनिया पसंद उड़ाने के लिए होता है, सब उड़ाते हैं, अच्छा उड़ाते हैं, बहुत ही अच्छा उड़ाते हैं। ये प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। अगला कौन है? अगला प्रश्न आइए। क्या नाम है बेटा? शिवम कुमार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, कविता में चित्रित यथार्थ और सामाजिक यथार्थ क्या, ये दोनों एक ही है, दोनों में भिन्नता है? सर इनका प्रश्न यह है कि जो कविता में चित्रित मतलब डिपिक्टेड जो रियलिटी है, यथार्थ है, और जो हकीकत में यानी सामाजिक यथार्थ है, या दोनों एक ही है या उसमें कुछ फर्क भी आ जाता है? दोनों एक ही है, दोनों एक ही, बल्कि हम पीछे हैं, बल्कि हम ही पीछे हैं। पतंग उड़ाते हुए जो प्लेयर मिलता है वो इतना गहरा है कि हम उसको शायद कम कर पाए। अच्छा कहा जरूर, 20 साल ये जब से NCERT शुरू हुआ तब से मेरी ये कविता पढ़ाई जाती है, और कई बार NCERT की मीटिंग हुई देहरादून में, और हम लोग को बुलाया गया, और उन्होंने मुझसे कहा कि अब ये कविता हटा दी जाएगी। तो हमें ठीक है, हटा दी जाएगी तो कोई बात नहीं है, दूसरी कविता दे वो हटाई जाएगी तो तीसरी कविता दे दे। काम ही हमारा ये मिठाई बनाना, हलवाई का काम है, तो आपको एक मिठाई अच्छी नहीं लगे तो दूसरी लेंगे, दूसरी नहीं लेंगे, तीसरी लेंगे। तो हमने मतलब वहाँ पतंग सुना है अच्छी होती,
तस्वीर में किस दिन उनको दूंगा, किस दिन पर डालेंगे तो आप देखिए कितने लड़के और लड़कियाँ हैं, चारों तरफ से घेरे हुए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किसी ऑटोग्राफ में देखिए। मेरा मैं ही वो ऑटोग्राफ क्या नहीं, हमारे साथ देहरादून है। तो ये जो ट्रेनर है जो उन्होंने पूछा यथार्थ है, वो यथार्थ तो बहुत कम हम लोग जान पाते हैं। जो जितना जानेगा उसमें उतना ही परफेक्शन होगा। फिर भी मैंने बहुत थोड़े शब्दों में जिसको कहना चाहिए कि जैसे मिट्टी के बर्तन में जितनी कला दी जा सकती है उसको उसे कला पत्थर में आसान नहीं है लाना, उसको मिट्टी में लाना आसान है। तो फिर उसको आप मोड़ सकते हैं जैसे चाहेंगे मोड़ दें। तो ये ठीक है बेटे, मुझे लगता है कि सर की बात पहुंची होगी। मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा एक अलग कंटेक्स्ट में ले जाना चाहूँगा। सर के ही एक दोस्त जो बहुत दिन के करीबी दोस्त थे, वेणुगोपाल, मेरे शिक्षक थे, तो क्लासरूम में अक्सर पढ़ाते वक्त कुछ बातें करते थे जो कि मुझे अभी बातें वो याद आ रही है इसी संदर्भ में। वो कहते थे कि देखो, यथार्थ वो देखने वाला या महसूस करने वाला होता कौन है? या तो आंख देख रहा है, आंख आप लोगों को, मेरी आंखें आपको देख रही हैं, हृदय महसूस कर रहा है, लेकिन बोलने का काम कौन कर रहा है? तो जो हृदय हूबहू महसूस किया, हृदय अगर बोलता तो उसमें एक्यूरेसी होगी, लेकिन बोलने का काम किसने किया? मुंह ने। लिखने का काम किसने किया? आंख ने तो देखा नहीं था, देखा किसने? आंख ने। उसने बताया किसको? दिमाग को। लिखा किसने? 3 स्टेप में कहीं ना कहीं वस्तु स्थिति बदल जाती है, या तो वह बढ़ जाएगी या कुछ घट जाएगी, और यह सत्य है। प्रेमचंद ने भी एक जगह कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण का मतलब वो नहीं है कि फोटोग्राफी स्टिल कैमरा वाला फोटोग्राफी नहीं हो कि जैसा फोटो खींचा, या तो वो कन्वेक्स हो सकता है या कनकेव हो सकता है, वो अवतल दर्पण हो सकता है या उत्तल दर्पण हो सकता है, समतल नहीं है। चित्रकार भी आपकी एक तस्वीर जब बनाता है तो आपकी तस्वीर वो नहीं बनाता है, आपकी छवि जो उसके भीतर बनी उस छवि को वो उकेरता है। मतलब जो आप है, हो सकता है कि आपकी छवि उसके अंदर राक्षस की तरह बन रही हो, तो पता चला कि यहाँ 2 दांत निकाल दिया उसने, और पता चला कि 2 दांत है और उसके अंदर देवता की छवि बन रही हो, तो आपने देवत्व को पैदा कर देगा। साहित्य लगभग ऐसा करता है। गणेश जी को देखो, कितने बड़े देवता है, गणेश जी उसको बहुत प्रिय है गणेश। अब गणेश जी को तो मालूम नहीं था, गणेश जी को तो दे दिया गया लंबोदर गजपतन विनायक विनायक मांगे तो तुलसीदास कर जोड़े बसव नाम उसके मानस में। चलिए हमारे पहुँचते हैं और इसमें तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, कोई मतलब हो किसी चीज़ के लिए नहीं हो। तो बहुत लड़ने वाला है उसको बोला भाई आओ भाई, इतनी मेहनत बनाई 14 साल 5 साल, और पतंग उड़ा के देखो, और पतंग उड़ाया काटो तो उसको नीचे, उसकी 12 पतंग काट तो चला जाएगा मैदान से। अगला प्रश्न मैं चाहूंगा, आ जाओ। मेरा प्रश्न ये है कि आज की तारीख में हिंदी कविता किस रूप में देखा जाना चाहिए, क्या इसमें रोजगार पैदा करने की क्षमता है? सर, इनका प्रश्न है कि आज का जो कविता लेखन है, हिंदी कविता लेखन, उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए, और साथ ही साथ इसी में एक और प्रश्न इनका है कि क्या इसमें रोजगार पैदा करने की शक्ति है क्या? आज की जो हिंदी कविता है उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए और इसका रोजगार से क्या संबंध बनता है? एक सीधे अगर पूछे तो एक तो नौकरी तो मिल जाएगी, आप हिंदी में इन्हें करेंगे, और पूरी साहित्य में लिटरेचर में अंग्रेजी लिटरेचर में आप करेंगे, दोनों एक दूसरे से सप्लीमेंट्री है। कि अगर इस तरह से आबादी बढ़ी है हमारी, जिस समय भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ाई हो रही थी, उसमें हम लोग 30 करोड़ थे, 30 करोड़ से थे। आज कितने हो गए? 130 करोड़ हो गए। अगर आबादी की यही रफ्तार रही
हम चीन से बहुत आगे चले गए, चीन पीछे छूट जाए। जमीन हमारे पास कम ही है और आबादी ज़्यादा हो जाएगी, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। आप रेल देखते हैं, रेल भरी रहती है, छत पर भी लोग बैठ जाते हैं रेल के ऊपर। आप कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भीड़ आपको नहीं मिलेगी, आपके माथे पर हमेशा एक बोझ, कांस्टेंट टेंशन, लगातार एक तनाव है आपके ऊपर। तो जो रोजगार की बात है, तो रोजगार की बात तो ये है कि हमारे पास तो रोजगार है नहीं, सभी के पास तो रोजगार नहीं है। अभी तो एक करता है, उसने भी पैसा आपको दे दी, हाँ आप अगर उसको गहराई से समझेंगे तो दूसरे काम में ये आपको मदद करेगा। जैसे मैं माल उठा कर बजाता हूँ, मान लीजिए बहुत अच्छा बजाऊंगा माल उठा कर, तो सुनने से आपको दूसरे काम में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वो रोजगार देना। यानी अगर आप संगीत ज़्यादा जानते हैं तो आप बेहतर जूता बनाएंगे, उसमें कम्फर्ट डालेंगे। जूता बनाना मामूली काम नहीं है। जूता का साइज जो अभी अच्छे जूते आ रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े खिलाड़ी जो जूता खेलते हैं वहाँ जा सकते थे, आप अनुमान नहीं लगा सकते एक जोड़ जूते की कितनी कीमत हो सकती है। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तो बैग बनता है, बैग वो कश्मीर में बनता था, तो उसकी लकड़ी वहाँ जम्मू साइड में। तो ये बड़ा दुनिया को जानने के लिए अगर आप लोगों को मैं बताना शुरू करूँगा तो आप यहीं से चल देंगे। आपके माँ पिता शिक्षक सब लोग कहेंगे कैसा पागल साधु आया। साधु ही लगभग तो कोरोना आया उसके बाद बड़ा था बात बहुत जगह यहाँ तक भी यहाँ तक हमारे यहाँ लड़की काम करने आती है, तो बोली तुम वहाँ नहीं जाओगे, मैं नहीं पूछ हटा करके वो काटता है, तो ठीक है कहाँ इन्फेक्शन है, कोरोना से कहाँ ये होता है बुरे नाम पर। तो फिर उसी लड़की में थोड़ा करके इतना मिला रे मन का। किशोर कुमार का गाया हुआ बहुत ही पॉपुलर गीत था, मन का मीत नहीं मिला। मन का मीत तो कब से जुड़ा जा रहा है, जब कृष्ण थे, राम थे, राम को भी सीता कितनी प्रिय थी और कृष्ण को भी रुक्मिणी कितनी प्रिय थी। ये तो एक लंबी लंबी बात है, इसके लिए मैं यहाँ आया नहीं हूँ, लेकिन ये गाना सुन लिया, मीत ना मिला देव मन का। मन का मीत नहीं मिलता, अभी तो लोग जीते ही हैं, मन का मीत नहीं मिलता है तभी जीते। आदमी एडजस्ट करता है। ये जो उड़ना है पतंग के साथ साथ, जब आप पतंग को उड़ाती हैं आप जमीन पर नहीं रहते, लिफ्ट करता है, लिफ्ट करेगा। तो ये ऐसी चीज जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज धीरे 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 गया और उड़ गया, ऊपर गया। जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर जाता है तो जो पायलट है उसके भीतर एक प्लेयर है, हमारा दोस्त है, शंभू नाम था, 3 हम लोग दोस्त थे पटना में। एक नाम शंभू था जो पायलट सीखता था, हवाई जहाज उड़ाना सीखता था, और एक मैं था, एक गाड़ी होता बड़ा सफा के और कट्टा लिखते थे। और तीसरा जो है वो डॉक्टर थे, डॉक्टर हो गए वशिष्ठ ठाकुर, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पहले बोरिंग में थे, आज इधर आए, काफी बड़ा डॉक्टर है, उनकी बेटी भी स्टार है। तो जो पायलट था शंभू, कहता था कि हमने अब सीख लिया है, हमें नहीं आपने हमें चढ़ा दे बोकरा में, अब कहीं अपने धन खेती में पानी वाला उतार ये बोलते थे, कभी चले नहीं, लेकिन एयर इंडिया का वो सबसे अच्छा पायलट माना जाता है। तो ये जो आदमी ठान लेता है मन में हम ये काम करेंगे तो करेंगे। और इसी तरह लोग फिल्मों में जाते हैं, साइंस में जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो
ऐसा नहीं कि केंद्रीय विद्यालय में तो जितने केंद्रीय विद्यालय हैं आपके, जितनी जगहों का आप नाम लीजिए, सब जगह उसको बुलाया गया, उनको मालूम सब जगह। यहाँ की पनवल न्यायालय उसके बोर्ड का है, वहाँ एक शिक्षक है, वो कहता है आप 1 महीना हम लोग साथ रहिए, हम लोग साथ रहिए, हम पैसा देंगे। हम कहाँ पैसा दीजिएगा आप? बोले हम अपना पैसा तो दे सकते हैं ना, अपना पैसा हम देंगे आपको। समझेंगे क्या हमारे ये हैं साधु हैं, हम आपको 15 मिनट बुलाया, वहाँ भी बुलाया, सामने कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उन्होंने नहीं बुलाया, मेघालय में बुलाया तो सब पानी में तो मुझे लगता है कि उत्तर आपको मिल गया होगा। दरअसल पतंग का उड़ना सिर्फ पतंग का उड़ना नहीं है, पतंग के साथ साथ बच्चे का उड़ना भी है। पतंग कटने के बाद बच्चे का आप चेहरा देख सकते हैं, आपको लगेगा कि नहीं पतंग नहीं कटा है, बच्चा भी कहीं भीतर से कट गया, किसी दूसरे का काटता है। एक तरह की हार है, इन हार को तो बड़ा अच्छा जो खिलाड़ी है वो हार को वहाँ तो नहीं देता, फिर दूसरी बार पतंग उड़ा। तो पतंग हमें गिरने और संभलने की ट्रेनिंग देता है, एक तरह से उस स्किल करता है आपको कि लगातार चुनौतियों से लड़ो, भले हारने के बाद फिर से उठकर खड़े हो जाओ, फिर से उड़ाने लगो। और यह कहीं न कहीं यह कौशल जीवन के बाकी क्षेत्रों में हमारे काम आता है। वह बच्चा जो बचपन में लगातार पतंग उड़ाया है, गिरा है, खड़ा हुआ है, पतंग काटा है और कटा है, और एक बच्चा वह जिसने इस तरह का कोई कार्य ही न किया हो, दोनों के व्यक्तित्व में निश्चित रूप से फर्क आप देख सकते हैं। तो वह पतंग सिर्फ पतंग नहीं है, वैसे तमाम अवसर हैं। वैसे अब मैं एक प्रश्न सर से मैं पूछना चाहूँगा। दरअसल यह केंद्रीय विद्यालय भोपाल नंबर 2 से एक हमारे शिक्षक साथी है, उन्होंने कहा है कि मेरे बिहाफ पर मेरी तरफ से आप पूछ लीजिएगा। कविता के प्रारंभ में खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, उनका कहना यह है कि खरगोश की आंखों जैसा ही क्यों, उसमें क्या खास विशेषता सर को दिखी थी? खरगोश तो देखा ही हमने, बहुत चंचल होता है खरगोश, सुंदर भी है, और उसकी जो आँखें होती हैं बिल्कुल ही लाल होती है, कोमल होती है, उसका लाल नहीं, ये जो उसमें इस तरह की कठोरता नहीं होती, बल्कि कोमल, सबसे कोमल है खरगोश की आँखें। आँखें तो और लोगों की भी रहती है जैसे, लेकिन हिरण की आँख है, हिरण की आँख तो लाल नहीं होती। जब सवेरा आता है सुबह में तो बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही कोमल अरुणोदय जो होता है, जो उसका सूरज का रंग है वो बहुत खूबसूरत है, और उसी डेलिकेसी को, उसी खूबसूरती को हमने वहाँ डालने की कोशिश की है। और हमने उसमें साइकिल भी लाई है, और वो भी नई साइकिल अगर आप चलाएंगी और चलाना सीख गई आज, आपको इतना प्लेजर लगेगा ताकि चलने में, इतना प्लेजर किसी दूसरी चीज़ में नहीं। एक बार अगर वो प्लेजर आपको मिल गया तो आप बिना साइकिल चलाए नहीं रहेंगे, थोड़ी सी भी साइकिल चला लीजिए, अगले बार जाएंगे 2 चक्कर कहीं मैदान में मारेंगे। हमने देखा है लड़कियों को, इधर नीतीश बाबू हमारे मित्र हैं, हमारे पर्सनल है, तो नीतीश जी ने कहा कि हम साइकिल बांटेंगे, हमने कहा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। और बच्चियों को उन्होंने साइकिल दी, और साइकिल तो अच्छी से अच्छी आती है, बढ़िया साइकिल, और उस पर मतलब एक बार घूम जाइए, सारा माथा का टेंशन खत्म। 2-3 लड़के घूमिए एक साथ, 2-3 लड़कियाँ, 2-3 लड़के, फैशनेबल तो लगभग प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, या अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो अभी भी स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। मैं शिक्षक से आपको अपना सब सवाल पूछना चाहिए, तो जब आप यहाँ से चली जाएंगी तो आपको वहाँ ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिलेगा। पहले ये तो और भी कम है, ये वहाँ पिछली बार हम लोग पास करके चले जाते थे, अब तो पास करो
तब भी फिर एक इम्तहान है, और जब उस इम्तहान में पास करो तब जाकर के वहाँ जाओ, फिर वहाँ तुम जो विषय लेना चाहती हो उसको भी लेकर के कि हमारे जो थोड़े में गुजारा होता है, मेहमान जो मेरा होता है वह जान से प्यारा होता है, हम पूरब है पूरब वाले थोड़े में गुजारा होता है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम जो है वो एक अच्छी रोटी बाजरे की और एक अच्छी मिस्सी रोटी खा करके और हम उतने ही तृप्त होते हैं। अभी मैं हरिप्रिया से आगाह करना चाहूँगा, आप आइए और कार्यक्रम कैसा लगा इस पर एक इम्प्रेशन जिसे कहते हैं। प्रयास करेंगे तो पढ़े जरूर पढ़ेंगे, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति और वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव आएंगे, जितना तुम पॉजिटिव होकर सोचोगी नहीं अच्छा। और अपने से जो सीनियर लोग हैं, शिक्षक हैं, युवा है, पिताजी है, तुम्ही उनको इतना प्यार करो कि वो तुम्हारे प्यार के बिना नहीं रहता। बात समझी? इतना ज़्यादा प्यार हमारी माँ थी, जब हम बोल देते थे कि आज नहीं जाएंगे तो माँ तो जानती थी कि पिताजी ऐसा नहीं मानेंगे, लेकिन माँ कहती थी अच्छा जाओ आज मत जाओ। और जब बाबू जी को समझा देती थी कि आज उसका जाना ठीक नहीं था, उसका मन खराब था, उसी तरह से कोशिश करनी चाहिए इसको भी अपना घर ही समझें, और जहाँ आप रात में सोती है वो भी आपका घर ही है। 1 घंटे से ऊपर बातचीत हुई। अब मैं जो कि पुस्तकालय के माध्यम से यह कार्यक्रम पूरा का पूरा आयोजित किया जा रहा है, इसमें लाइब्रेरी मैडम का सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि पूरा आयोजन उन्हीं के माध्यम से हुआ है। अब मैं मैडम से आग्रह करना चाहूँगा कि मैडम मंच पर आए और धन्यवाद दिया था मैडम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री आलोक धनवा जी और सीबीसी सर और मौजूद सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आज आलोक धनवा जी का यहाँ पे आगमन हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोग इसके लिए काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम किसी एक बड़े ऑथर को यहाँ पे बुलाएं, ताकि बच्चे के अंदर राइटिंग स्किल्स का भी हो, उनको देख के वो मोटिवेट हो और बच्चे उनसे कुछ सीखे। अगर एक बच्चा भी सीखता है कुछ कि उनके अंदर ये जागता है गाने कि हम लिख सकते हैं अच्छा, क्योंकि बहुत बच्चों के अंदर वो स्किल होती है लेकिन उनको मोटिवेशन कहीं ना कहीं से चाहिए। हो सकता है कि हमारे किसी बच्चे के अंदर गया होगा, और हमें आशा है कि आपने जो चैप्टर पतंग के बारे में इनसे सीखा, प्रैक्टिकली आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा, और साथ ही अपने जीवन के बारे में सर ने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ हम लोग को बताया, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही आशीर्वाद की तरह है। और हमारे बच्चे भी इससे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं, हमारा पुस्तकालय तो लाभान्वित हुआ ही है, और हमारे विद्यालय में सर ने समय निकाला और इसके लिए आए। इसके लिए मैं हम अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय और स्पेशली सीबीसी सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सर ने मतलब आलोक धनवा जी को कन्विंस किया कि वो हमारे स्कूल में आए, और इन्होंने अपना हमारे बच्चों को अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। हमें उम्मीद है कि सर आगे भी आएंगे और हमारे बच्चों को मार्गदर्शित करेंगे। धन्यवाद।